So, good morning, children. This is our class for prose from class 11, and here we are going to discuss about the ailing planet, the green movement's role by Nani Falkiwala. And as it is a prose, we need to discuss line wise. So, this is our line wise discussion here. But before that, the ailing planet, about the title, ailing means what? Suffering or maybe sickness. Ill word but participle form ailing, and planet that's suggesting our earth. So this is ailing planet, our planet suffering here. And in the story you will find the three main themes here together. First, how it became ill, what ill or ailing our planet, and what is this present condition of this ailment or suffering, and final part, that is third part, about how to cure this ailment. This is what three main topics from this but chapters. First, listen, I am repeating. First, what is the suffering of the planet? What is the present ailment of the planet? First topic. How it became ill, that is what the second topic. And finally, how to cure, that is what the suggestion by great speaker, writer and thinkers. So this is what in three part you will find is that is what pollution, what industrialization, population, all these topics presented here. So line wise, let's start from, we have here 17 paras, 17 paras में ये stories present किया है, but वही three main themes को present किया गया है. So para number one, let's screen shows it here. हाँ. So पैरा नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली as the green movement which started nearly 25 years ago in 1972. The world's first nationwide green party was founded in New Zealand. Since then movement has not looked back. This is what the first para में main things is that कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक जितने इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक पार्शियल पार्ट में, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अगर देखें, पूरा वर्ल्ड में नहीं हुआ था वो इन्वॉल्वमेंट. यूरोप और अमेरिका और कुछ कंट्रीज ऑफ एशियाज उसमें इन्वॉल्व हुआ था. बट ऐसा एक मूवमेंट जो वर्ल्ड का ऑल कंट्रीज, अकॉर्डिंग टू यूएनए नियर अबाउट 200 कंट्रीज ऑल इन्वॉल्व हुआ था इस थिंग्स में कि वर्ल्ड का एनवायरनमेंट का पोजीशन बहुत ख़राब है. इसको अगेंस्ट में कुछ प्रोटेस्ट और प्रोटेक्शन स्टार्ट करेंगे. इसके लिए 1972 में फर्स्ट टाइम ह्यूमन बींग्स इस प्रॉब्लम को समझे. सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट पैरा अबाउट. नेक्स्ट पैरा नंबर टू, लेट्स गो शिफ्ट द स्क्रीन फ्रॉम पैरा नंबर 2 to para number 2. Good. Here is the para number 2. We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view. मैकेनिकल व्यू किसको बता रहे हैं कि फास्ट 100 ईयर्स पहले ह्यूमन बींग समझ गए कि अर्थ प्रॉब्लम में है, बट उसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं ले रहा था. डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम लोग वर्ल्ड और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट का कोई स्टेप्स नहीं ले रहा था. अभी होलिस्टिक मतलब होली वर्ड हो रही पवित्र, एक हार्ट फेल्ट जो स्टेप्स वो लेना स्टार्ट किया कि इकोलॉजी को एंड वर्ल्ड को बचाना, शेप करना बहुत ज़रूरी है. तो दैट इज़ व्हाट वी नेक्स्ट. It is shifted in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve around the Sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the Earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its metabolic needs and vital processes which need to be respected and reserved. तो ये सेकेंड पैरा में जो कोपर्निकस के बारे में इंसिडेंट, यहाँ पर
पॉइंट से कोपरनिकस को प्रेजेंट किया। फर्स्ट तो कोपरनिकस ऐसे साइंटिस्ट था जो वर्ल्ड को फर्स्ट बताए कि ये अर्थ रोटेट कर रहा है सन के ऑर्बिट, और सन राउंड करके नहीं लाइट दे रहा है बट अर्थ को, जो 1000 ईयर ओल्ड ह्यूमन बिलीव्स था। इवन ऑल स्क्रिप्चर्स, ऑल रिलीजन में यही बताते आए कि सन सूरज के चारों तरफ घूम के लाइट दे रहा है। और यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ये कोपरनिकस जब चेंज कर दिया था तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए ये वर्ल्ड पॉपुलेशन को, ह्यूमन साइकोलॉजी को और कई साल लग गए। इसके चलते उसको अब जेल में भी कैद कर दिया कोपरनिकस को कि ये गलत बता रहा है। बट एक ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत टाइम्स लगता है। उसी टाइप का ये कंपैरिजन बताए कि ये अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है खराब है, इसको महसूस करने के लिए भी कई साल इंसान को लग गया, और उसको प्रोटेक्ट करना अभी ये जस्ट 20th सेंचुरी का लास्ट में आके स्टार्ट किया। सो दैट इज़ व्हाट द रेलेवेंट ऑफ कोपरनिकस। कोपरनिकस का एक साइंटिस्ट का इंसिडेंट इस एंगल से प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट पैरा नंबर 3, लेट्स स्टार्ट एंड पैरा नंबर 3, द अर्थ वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट। देखिए प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अर्थ को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। अर्थ वाइटल साइन reveal a patient in decline health. We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. तो ये अर्थ का जो वाइटल पैटर्न है, दैट इज़ व्हाट, जिसमें हम लोग ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसका कंडीशन बहुत ख़राब है। और उसको इतना ख़राब है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको ठीक हिसाब से ऐसे व्हाट हम लोग इसे ड्वेलर हिसाब से इसको यूज़ करें, लीगसी हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा तरीका में रख दें। ये 3rd पैरा में बताया गया है। नेक्स्ट पैरा नंबर 4, सो 1 2 3 इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, अप टू 3 2nd पैरा में जस्ट कोपरनिकस का पॉइंट्स को एलाबोरेट किए हैं कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी कितना दिन लगता है एक ट्रूथ को मानना और उसके अगेंस्ट में स्टेप लेना। नेक्स्ट पैरा नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा दुनिया में फैले था। इट इज़ रिपोर्ट्स In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बताया गया? जो डेवलपमेंट आज का जनरेशन का ज़रूरत को पूरा भी करे और आने वाले जनरेशन का ज़रूरत को भी पूरा करने का एबिलिटी रखे, इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड मेन। तो ये नेचुरल रिसोर्स को ख़राब नहीं करके हम लोग उसको यूज़ करेंगे, यही है सस्टेनेबल जनरेशन का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर्मूला। तो ये पैरा नंबर 4 टेलिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थितिशील विकास, जो डेवलपमेंट परमानेंट हो, तो उसको ऐसे कि प्रेजेंट जनरेशन का जो ज़रूरत है उसको भी पूरा करे और आने वाले जनरेशन का ज़रूरत को भी। नेक्स्ट पैरा नंबर 5, इन द जू एट लुसाका Zambia, there is a case where the notice reads the world most dangerous animal. Inside the case there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the effort of numbers of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. तो पैरा नंबर 5 में जम्बिया का एक जू जो लुसाका में है, ये जू में एक केस के बारे में बताया, जिस केस का ऊपर लिखा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल, और उसका अंदर में कोई एनिमल नहीं रखा गया, जस्ट एक मिरर रख दिया ताकि जो व्यूअर है वो खुद को रिफ्लेक्ट करे, एंड दैट इज ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ह्यूमन हु डेस्ट्रॉयड इट्स ड्वेलिंग प्लेस। उसका बाकी सब एनिमल तो एक दूसरे को अटैक करते हैं फूड के लिए, रहने के लिए, बट इंसान एक ही ओनली व्हाट क्रिएचर्स, जिसको एनिमल मैमल्स बोल सकते हैं, जो इसका लिविंग प्लेस अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दिए। नेक्स्ट पैरा नंबर 6 में हम लोग जाते हैं।
scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind share the earth. तो साइंटिस्ट ये धरती में कितनी टाइप का प्रजाति स्पेसीज है बताया 1.4 मिलियन. 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, यू नो वेल. तो इतने मिलियंस स्पेसीज अर्थ में रहते हैं. एस्टिमेट वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज. बायोलॉजिस्ट रेकॉन दैट about 3 to 100 millions other living species still languish unnamed in ignominious darkness. बट ये जो कैटेगोलॉग बनाया है साइंटिस्ट, उसके बाहर भी कई मिलियंस स्पेसीज प्रजातियाँ ये धरती में है, और जिन लोग अंधेरे में इग्नोमिनियस, दैट मीन्स इग्नोमिनियस मीन्स ऐसे शर्मिंदा करने वाला एक सिस्टम्स को बता रहा है जो डार्कनेस में लोग खोए हुए हैं, और उस डार्क में ऐसे ही लैंग्वेज मतलब वर्ड एक्सटिंक्ट होने चले हैं जो हम लोग को पता ही नहीं चला. इस टाइप का एक सिस्टम बताया. तो पैरा नंबर 6 में अर्थ में स्पेसीज के बारे में बताया 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज जो कैटलॉग बनाया गया है, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई किया है, बट उसके बाहर में भी और कई मिलियन स्पेसीज था. बट अभी बहुत मोस्ट ऑफ देम आर इन अंडर डेंजर. बट नेक्स्ट पैरा नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे. पैरा नंबर 6 में आपको पता चला कि ऑर्गेनिज्म लिविंग स्पेसीज के बारे में बताया. नाउ पैरा नंबर 7